So how many of us are not happy with change of timings? Yeah, happy sir. All are happy, but anybody who is not happy? Sir, if we can do Anybody it, who is not? Sorry. like as per the time schedule, we have 1 hour break, 10 o'clock to 11 o'clock. Instead of we can start Huh. 9:30 and till 10:30, then Yeah, it yeah. Okay, okay. Okay, point taken. Point taken. I will request my this thing principal to look at it. Instead, because the 1 hour break, even faculty probably would love it. So 9:30 उसको करने के लिए मैं जरूर I will strongly recommend. I will strongly recommend to change from 9 to 10 to 9:30 to 10:30. yes, हमने sir. अगर आप पे लगन कर Thank you, sir. Karanveer Singh Nair, you have to write, abbreviation, name in abbreviation. Also Peljor Sharing Sherpa. Uh, your indoors number must be seen. Kshitij Agarwal also. So you can see yourself. If your indoors number is not seen, so it is difficult to count as attendance. So that is what DG has recommended. Now there is Okay, sir. somebody E2498666. I don't know who this person is. E2498666. Or who are you? His video is also open. Identify yourself. Station. Please identify yourself. So many people had, actually last class that I did had something very important. Uh, I had shared something very important. Also, since we have more time, normally what I would be doing was I would be spending. ये बताइए एक तो ये हो गए इसको मैं एडमिट तो कर रहा हूँ बट ये स्टेशन कौन है ये समझ नहीं आ रहा है इसको मैं पूछ लेता हूँ लेट अदर्स ऑल्सो ज्वाइन सर जो 1 मिनट रुक जाते हैं और आई विल आस्क दिस पर्सन टू आइडेंटिफाई हिमसेल्फ Okay, sir. क्वेश्चन
सर आपका माइक ऑफ है. Thank you. That person हाँ ये आप हैं. ये सर आप बोलिए ना कुछ. आपका नाम क्या है? आप the one in striped shirt. Against your profile, your name is not written. It is written as E2498666. ये E2498666 लिखा हुआ है. आपसे बात कर रहा हूँ. In striped shirt, white and blue striped T-shirt. आपका नाम क्या है? Go ahead, please. अच्छा, you are Shrikant Jajaria. Okay, you have just entered, so you are not familiar. That is the reason. So Shrikant, this is Captain KK Sharma, and in the Zoom meeting you are required to write your name in abbreviation in the profile. So S Jajaria and then endorse number. Okay. So at the moment against your profile name that E24 something written. So next time we are in the meeting, you must mention your name like others have. Please go to participant and have a check. तो पार्टिसिपेंट में आपको दिखेगा कि बाकी लोगों ने कैसे अपना नाम लिखा हुआ है. तो आपको भी ऐसे ही नाम लिखना है कि आपका एंडोर्स नंबर भी साथ में दिखाई दे. ओके श्रीकांत. So if you want to speak with me, you can unmute your mic on your own and talk to me. Okay. Hello Shrikant. Sir, I think he cannot hear. Oh, sir, message भेजा है. He cannot hear you. I think. He cannot hear. Yeah, he first time actually he is joining. So Yes, sir. he is There not is an accustomed. option above the mute. You have to select that one. हाँ, लेकिन वो सुन थोड़ी पाएगा. जब वो सुनेगा तभी तो उसको चैट में ही बता सकते हैं, है ना? हाँ. Anyway, somebody can help me and tell him this person E2498666. He joined today itself. His name सर is आप Shrikant कॉल ही कर Jajaria. दो, उसे कॉल ही कर दो. कॉल करके बता दो. हाँ ठीक है. Anyway, the point you can read my message because he replied also. Yeah, now I think enough. We must start for everybody's cause. So we must now start. तो ये जो पिछली क्लास में जो कराया गया टॉपिक और 2-3 लोगों ने पूछा भी कि आपने जो है थोड़ा फास्ट हो गया है या क्या हो गया है. तो I wanted to redo this because this is extremely important. This has never been done. I think hardly anybody would have done it as a second mate. Some may have done it. This transfer of single position line. Most second mates are not able to answer. This question never comes in second mate exam. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इसे ऑल्सो कॉल्ड ब्लाइंड पायलटेज. तो पहले मैं इसको रिवाइज करूंगा और फिर मैं वो पोजीशन सर्कल ट्रांसफर वाला, वो भी एक कॉन्सेप्ट ऐसा है कि कई लोगों को एंड तक वो डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते. तो ये बहुत दोनों at the cost of revision at the cost of your time, I am duty bound to repeat these two: transfer of single position line, also called blind pilotage, and then your this thing, your transfer of position circle. ठीक है. तो now I will show you that one screen. तो स्क्रीन से ज्यादा अच्छा दिखेगा. तो क्वेश्चन पिछली क्लास में भी मैंने दिखाया था, वो हैंड रिटन था. I told you that day I had gone to FOSMA to bring my notes, so I did not get time to make a picture. So today I have made it.
So I will just share with you. Yeah, hope everybody can see this. You can zoom in, zoom out. I will not do it because that will disturb people. So on your own, you can zoom out, zoom in, and have a good look at this. Peljor had last time requested that I should put ABCD. So that also I have put now. Please read the question. I have simplified this question. Original question in previous that was done in previous class. In that I had mentioned that Saint Gowan light was at a northerly compass bearing, है ना? 4000 degree compass, है ना? And then on a ship that was on a heading of 090 ऐसे कुछ था. तो शिप का हेड बताने का मतलब ही ये था कि क्योंकि CDMVT में अगर जब भी आप कंपास बेरिंग से ट्रू बेरिंग या ट्रू बेरिंग से कंपास बेरिंग यानी अर्थात जब भी आप डेविएशन कार्ड का प्रयोग करते हैं CDMVT में हम ट्रू या हमारे पास ट्रू बेरिंग है तो कंपास बेरिंग प्राप्त करते हैं या फिर कंपास बेरिंग दिया है तो ट्रू बेरिंग प्राप्त करते हैं डिविएशन वेरिएशन लगा के. और डिविएशन कार्ड जो है शिप का डिविएशन कार्ड दिया होता है आपको एग्जाम में दिया जाता है डिविएशन कार्ड कि डिविएशन ऑन दिस कंपास कोर्स वाज सो मच. सो डिविएशन कार्ड इज ऑलवेज मेड फॉर द कंपास हेड. कंपास हेड माने कि शिप का कंपास कोर्स उसके ऊपर हमेशा डिविएशन कार्ड बनता है. ठीक है, तो किसी भी कंपास बेरिंग पर डिविएशन कार्ड लगाना या डिविएशन लगाना is criminal. You can write it as a slogan. It is criminal to put deviation or variation in a bearing. Okay. हमने पिछली एक क्लास में ये किया था पर आपके रिवीजन के लिए कि never you put a deviation to a bearing. A deviation, the value of deviation जो भी है 2 degree east 4 degree west जो भी डिविएशन कार्ड में जो आप प्राप्त करते हो डिविएशन वो कभी भी बेरिंग पे नहीं लगाते. वो हमेशा शिप्स हेड पे लगाते हैं. इसीलिए वो उस क्वेश्चन में जो पिछली क्लास में हमने देखा था सेम क्वेश्चन जो अभी आपके स्क्रीन पर है और उसमें उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंपल करके यहाँ लिखा गया है. तो उस क्वेश्चन में ये लिखा था कि शिप का बेरिंग 000 था और शिप्स का कोर्स था 090. तो 000 बेरिंग कंपास बेरिंग पे कभी भी डेविएशन नहीं देख सकते हम लोग, कभी भी नहीं देख सकते. इट इज क्रिमिनल. तो हमेशा वो जो 090 दिया था उसका अर्थ ही ये था कि हमें उससे जो है डेविएशन प्राप्त करना था. 090 and after finding then we use it in any, then it can be used in any bearing. Okay, तो हमने उससे प्राप्त किया था कि it was 4 degree compass was more, so west, so it was 4 degree west. The compass bearing was the compass error on the course of 090. The compass error in the question was 4 degree west. So compass west means error best. So error best means means the compass course is more. So the compass course was 0690. So that came to 086, and the relevant bearing came to 356, isn't it? So that 356. So in this blind pilot, now today what I have done is I have simplified that, and I have started the question from की initial true bearing is 356. कोई कन्वर्जन कंपास फंपास CDMVT कुछ सोचने की जरूरत नहीं. अपना पूरा ध्यान आप इस क्वेश्चन इस इम्पोर्टेंट जो ये टाइप ऑफ क्वेश्चन है ब्लाइंड पायलटेज, जिससे कि आप अपना पूरा ध्यान इस पे केंद्रित कर सकें. इसलिए वो क्लटर मैंने हटा दिया. अब मैंने सीधा ट्रू बेरिंग ही लिख दिया है
जो कि आप प्राप्त करते CDMVT से। अब सीधा यहाँ पे क्वेश्चन में 356 ट्रू बेरिंग लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, है ना। तो एक ही जानकारी है शिप के पास, और वो जानकारी है कि ट्रू बेरिंग ऑफ 356 ऑफ सेंट गोवान लाइट, बस इतना ही मालूम है और कुछ नहीं मालूम हमको, है ना। तो अब मैं क्या करूं ए खुदा, अब मुझे आगे क्या करना है। तो भाई साहब अगर सिर्फ एक बेरिंग मालूम है और कुछ नहीं मालूम, और फिर वो कवि कह रहा है कि आपको ये कार्डी आइलैंड लाइट के 4 माइल्स ईस्ट से पास करना है, तो आप क्या करोगे। तो सबसे पहला कर्तव्य आपका है कि जो 356 है ना, मेक अ लाइन पैरेलल टू 356 एंड पासिंग ईस्टर्ली ऑफ कार्डी आइलैंड। मेक अ लाइन पैरेलल टू 356 एंड पासिंग 4 माइल्स ईस्ट ऑफ कार्डी आइलैंड। तो ये जो यहाँ पे लाइन दिख रही है ना, ये वाली ब्रावो, ये ब्रावो जहां तक यहाँ पे लिखा है, मेक लाइन टेंजेंशियल टू कार्डी, ऑलराइट। तो ये लाइन आपको सबसे पहले बनानी है, पैरेलल लाइन, जो कि ओरिजिनल बेरिंग था 0 आपका 356 का, उसके पैरेलल एक यहाँ पे बेरिंग लाइन आपको बनानी है, दैट्स ऑल, यही मैं कह रहा हूँ। और अब क्या करना है, एनी पॉइंट ऑन द फर्स्ट बेरिंग लाइन के पास कोई भी पॉइंट देखो और उसको मित्रों वहां से एक परपेंडिकुलर बना दो। सो परपेंडिकुलर द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। कहीं भी ये ए पॉइंट कहाँ मिलेगा मुझे सोचने की जरूरत नहीं है, एक बेरिंग लाइन है, ये ऊपर हो नीचे हो कहीं हो, ये पॉइंट यहाँ हो, उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप कहीं भी ये बेरिंग लाइन बना दीजिए, ऑलराइट। सर फिर से आप वो स्क्रीन दिखा दीजिए। हाँ एक सेकंड, वो मैं मेरी कुछ कारगुजारी हो गई थी, अब स्क्रीन को बहुत ध्यान से देखो, ये आपके एग्जाम के लिए, आगे के लिए, क्योंकि बार बार इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जब तक फंडा क्लियर नहीं होगा, इसीलिए आई एम रिपीटिंग द फंडा, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ट्रांसफर ऑफ सिंगल पोजीशन लाइन। जब आपके पास कोई और जानकारी नहीं होती तो आपके पास जो इकलौती जानकारी है, इकलौती जानकारी क्या है, वो बेरिंग। तो सबसे पहले तो इट इज क्रिमिनल टू प्लॉट अ कंपास बेरिंग ऑन चार्ट, ये भी स्लोगन आपने लिखा था पिछली बार, नहीं लिखा तो अब लिख लो, इट इज क्रिमिनल टू प्लॉट अ कंपास बेरिंग ऑन चार्ट, यू कैन नॉट प्लॉट अ कंपास बेरिंग ऑन चार्ट। पहले तो इस वाले क्वेश्चन में जो लाल रंग से जो अभी मैंने सिंप्लीफाइड क्वेश्चन दिया है, तो कंपास बेरिंग तो मैंने इस क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, पर हाँ ये ओरिजिनल क्वेश्चन आपके मेट्स के एग्जाम से लिया गया है पेपर से, तो वहां पे ये कंपास बेरिंग दिया हुआ था। तो कंपास बेरिंग आप कभी भी चार्ट पे प्लॉट नहीं कर सकते, हमेशा ट्रू बेरिंग ही प्लॉट करना है। तो फिर आपने CDMVT में कन्वर्ट करके, तो मैंने आपको रेडीमेड यहाँ पे 356 दे दिया ट्रू बेरिंग। तो ट्रू बेरिंग आपके पास था, तो मैंने अर्ज किया कि 356 के पैरेलल एक और 356 बनाइए। कहाँ बनाएंगे, जहां कवि चाहता है। कवि आपको कह रहा है कि फाइनली आपको कार्डी आइलैंड के 4 माइल ईस्ट में से पास करना है ना। तो 356 के पैरेलल एक रेखा आपने बनाई, कार्डी आइलैंड के 4 माइल ईस्ट में बनाई, ठीक है। और फिर किसी भी पॉइंट पे, एनी पॉइंट ऑन द दिस इनिशियल बेरिंग आपने शुरुआत कर दी और एक परपेंडिकुलर बना दिया। दिस परपेंडिकुलर दैट यू हैव मेड, द परपेंडिकुलर क्या नाम रखा है इसका, AB। This perpendicular AB that you have made, gentlemen, this perpendicular AB is the first course made good by the vessel. This AB is the first course made good, and then after B, perpendicular to the same AB is the second course made good, जो कि कार्डी के ईस्ट से जा रहा है ना। तो ship will be proceeding perpendicular to the initial bearing, and then then alter course at a particular time, and then again then alter course at Bravo, and alter course 90 degree to such that the second course is 90 degree to the first CMG. So AB is the first CMG, and from Bravo to northwards, in fact 356 in the direction 356 is the second course made good. Okay, so second course made good is same as the initial bearing, or reciprocal of the initial bearing.
है ना, 356 + 180 इज दैट कोर्स। तो अब हम आते हैं, अच्छा ये ब्लाइंड पायलटेज या ट्रांसफर ऑफ सिंगल पोजीशन लाइन के क्वेश्चन में हमेशा जो है 99.99% कह लो, आज तक मैंने ऐसा कोई क्वेश्चन देखा ही नहीं है कि ये चीज ना हो, कि हाउ टू आइडेंटिफाई कि इट इज अ ट्रांसफर ऑफ सिंगल पोजीशन लाइन क्वेश्चन। तो टाइम ऑफ फाइनल ऑल्ट्रेशन, ये उसका पहचानने का तरीका है। इस तरह के क्वेश्चन में टाइम ऑफ फाइनल ऑल्ट्रेशन दिया होता है, क्योंकि ब्रावो इज नॉट अ फिक्स्ड पॉइंट, है ना। you could have been southerly or a northerly of where we took it, because that was any point. So bravo is not a fix, है ना, it could be anywhere north or south on that line, but the time taken, but the distance AB will never change. Okay, distance AB will never change. So अब आइए कि हम ये टाइम टेकन कैसे प्राप्त करते हैं, आइए देखें। बहुत आसान है भाई साहब, हमेशा कोर्समेट गुड के पैर में, जड़ में, उसके टेल में लगाते हैं सेट, है ना। जिस तरह कोर्सटेड के सर में लगाते हैं, कोर्सटेड के सर में लगाया सेट तो आता है कोर्समेट गुड। उसी प्रकार कोर्समेट गुड के हमेशा पैर में, उसकी पूंछ में, उसकी टेल में हमेशा लगाते हैं कोर्सटेड, करंट। तो करंट की दिशा क्या थी यहाँ पे, तो यहाँ पे करंट सेटिंग साउथ ईस्टर्ली। Wind is always named from the direction it is coming and current is always named in the direction it is taking you. तो साउथ ईस्टर्ली दिशा में पॉइंट ए से, ए वाज एनी पॉइंट, तो एनी पॉइंट से साउथ ईस्टर्ली दिशा में हमने अपनी रेखा खींच दी, है ना। और फिर करंट का वो रेट भी दिया हुआ था, और क्योंकि हमें टाइम पता करना है, हमें टाइम पता नहीं है, तो ऑलवेज यूज 1 आवर। जब हमें टाइम पता नहीं होता तो हम 1 आवर यूज कर लेते हैं, और पता होता है तो जो भी टाइम है फिर वो यूज करते हैं। तो यहाँ हमें टाइम पता नहीं है तो हम 1 घंटे का ट्रायंगल बना लेंगे। तो यानी कि हम चार्ली, है ना, AC, हम चार्ली पर वो करंट को एक चाप बनाएंगे। वो AC की दूरी लंबाई कितनी होगी, जितना रेट है, और इस 1 घंटे के लिए हाँ कितने नॉट का है, 2 नॉट्स, 2 माइल का चाप लगा देंगे चार्ली पर। पॉइंट ए से साउथ ईस्टर्ली दिशा में जो हमने रेखा बनाई है करंट की, उस पर हम जो है 2 माइल का, सो AC डिस्टेंस AC इज 2 माइल। तो दिस C इज महत्वपूर्ण बिंदु। व्हाई इट इज महत्वपूर्ण बिंदु? व्हाई? बिकॉज यहाँ आके मैं भूल जाता हूँ कि मुझे क्या करना है। और यहाँ पे वैसे भी इस क्वेश्चन में जो MMD का क्वेश्चन मैंने पिछली बार दिखाया था, तो उसमें आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या क्या लिखा हुआ था कवि ने। एक जगह लिखा था कि इंजन स्पीड 12 नॉट है, फिर दूसरी जगह लिखा था कि बट शिप इज मूविंग एट स्पीड ऑफ 8 नॉट। कैसे वो कंफ्यूज कर रहा है आपको, पर आपको कंफ्यूज नहीं होना। 12 नॉट इंजन स्पीड नॉर्मली है, पर इस समय तो इंजन स्पीड 8 नॉट है ना, तो 12 नॉट की चर्चा क्यों कर रहे हो? तो 12 नॉट को भूल जाना है, इस समय तो वो 8 नॉट पे चल रहा है ना। शिप इज मूविंग एट अ रिड्यूस्ड इंजन स्पीड ऑफ 8 नॉट। तो पॉइंट C से 8 माइल का चाप अपने दाएं हाथ में लैटिट्यूड स्केल पर, आप लेफ्ट हैंडर है तो बाएं हाथ से भी ले सकते हैं, लैटिट्यूड स्केल से 8 माइल का चाप लीजिए अपने कंपास पर। चार्ली पर गाड़िए कंपास को, विद सेंटर एज चार्ली, with center as C, cut a arc on line AB with of this distance 8 miles. So I'm trying to say is that this CD, the length CD, which is the length of the this is the engine speed. 1 घंटे की engine speed आप काट रहे हो जो CD है, so CD is the engine speed for 1 hour. It is 8 miles. So CD is equal to 8 miles. ये very important point. तो C पर जो है कंपास गाड़ के आपको 8 माइल का चाप लगाना है। कहाँ लगाना है? वो CMG पर। तो ये हमारा गोल्डन ट्रायंगल ऑफ शिपिंग बन गया, ACD, है ना। ACD हमारा 1 आवर ट्रायंगल बन गया कि नहीं? तो मित्रों, इस ट्रायंगल में AC क्या है? AC है रेट। CD क्या है?
CD है इंजन स्पीड, और AD क्या है? कोर्स मेड AD गुड, है स्पीड मेड गुड। FMG Speed made good, sir. हाँ, AD है स्पीड मेड गुड, AD है स्पीड मेड गुड। स्पीड मेड तो गुड। हमसे कवि ने पूछा था कि टाइम कितना लगेगा ब्रावो पे पहुंचने में, पॉइंट ब्रावो पर पहुंचने में टाइम कितना लगेगा, यही तो पूछ रहा था ना कवि, है ना? Yes. टाइम ऑफ फाइनल ऑल्ट्रेशन यही पूछ रहा था ना वो। तो Yes. बता दो, AB Yes. डिवाइडेड बाय AD, है ना? AB डिवाइडेड बाय स्पीड मेड गुड, वहां पेंसिल से लिखा भी हुआ है ऊपर। सो दैट इज द टाइम टेकन, ठीक है? अब वो ऊपर वाले पे आ जाते हैं कि कोर्स टू स्टीयर टू अचीव अबाउ, what course you will steer to achieve this 086, ये 086 है ना कोर्स मेड गुड। तो कोर्स मेड गुड 086 अचीव करने के लिए आप कौन सा कोर्स स्टीयर करोगे? तो आपने ध्यान दिया कि ये जो CD है, CD is also called leeway track, also called effective course steer. Always remember, in the golden triangle in chart work जो कि आपके समक्ष प्रस्तुत है, ACD, in this golden triangle ACD of chart work, always the line CD is the leeway track. That means the track that comes after applying the leeway. तो जो आता है हमारे पास वो उस विंड का इफेक्ट लगाने के बाद ही बनता है ये ट्रायंगल, हमेशा हमेशा। लेकिन कवि ने आपसे पूछा है कि एक्चुअल कोर्स स्टीयर्ड क्या होगा? तो मित्रों, CD एक्चुअल कोर्स स्टीयर्ड नहीं है, वो तो विंड का इफेक्ट लगाने के बाद आया है, वो है। तो एक्चुअल कोर्स स्टीयर्ड क्या था वो अब मैं कैसे पता करूं? वो ऐसे पता करो कि यहाँ पे हवा दी हुई है, कौन सी दिशा से आ रही है? देखो, हवा कॉजिंग, एक मिनट, हवा की दिशा नॉर्थ वेस्टर्ली। अब ये कवि कह रहा है कि नॉर्थ वेस्टर्ली विंड कॉजिंग 2 डिग्री लीवे। तो विंड इज ऑलवेज नेम्ड इन द डायरेक्शन फ्रॉम वेयर इट इज कमिंग। सो नॉर्थ वेस्ट से, यानी कि इधर से, यानी कि उत्तर पश्चिम से, यानी कि सेंट, जहां सेंट गोवान लाइट है ना, हवा वहां से आ रही है ना? विंड इज ऑलवेज नेम्ड फ्रॉम द डायरेक्शन इट इज कमिंग। तो लगभग यहाँ पे सेंट गोवान लाइट है ना हमारा, तो लगभग वहां से हवा आ रही है ना? तो हवा जो है, हवा हमारा जो इफेक्टिव कोर्स स्टीयर्ड है उसको 074 कर रही है। ये 074 हमें चार्ट पर कंपास रोज पर ले जाकर प्राप्त हुआ है। आप पूछोगे 074 कहां से आ गया? ये जब हमने ये रेखा खींची CD, जब हमने वो चाप काटा था 8 माइल का, तो जो रेखा CD आई, तो रेखा CD को हम कंपास रोज पे ले गए, तो वहां से हमें 074 प्राप्त हुआ, ठीक है? तो 074 इज इफेक्टिव कोर्स स्टीयर्ड। तो एक्चुअल कोर्स स्टीयर्ड क्या है? तो भाई साहब, हवा आ रही है सेंट गोवान की तरफ से और कह रहे हैं कि 2 डिग्री लीवे है, तो डेफिनेटली आवर कोर्स मस्ट हैव बीन 072 फॉर द लीवे ट्रैक टू बिकम 074, है कि नहीं? अगर डाउट है तो मुझसे पूछो। भाई हवा उधर से आ रही थी तभी तो 072 को उसने 074 कर दिया। तो योर आंसर दैट यू विल राइट इन द आंसर शीट for A will be 072 degree true, and answer for B part, time of alteration, that you will write will be your जो भी आती है वैल्यू AB upon AD जो भी आता है वो कैलकुलेट करके सर AB की वैल्यू कितनी? हाउ मच इज डिस्टेंस? सर हाउ मच इज डिस्टेंस बिटवीन A to B? आ रहा हूं। हाँ अरे भैया, ये तो टाइम खत्म होने वाला है, जल्दी से 7-8 मिनट बचे हैं। any doubt on this? Any questions? Can I move to सर position circle? डिस्टेंस नो प्रॉब्लम सर। डिस्टेंस मेड टू डिस्टेंस कितना? हाउ मच डिस्टेंस फ्रॉम A to B? यार कुछ क्लियर नहीं, आवाज नहीं आ रही। मैं अपना बहुत डिस्टरबेंस है यार, जो भी बोल रहे हैं ना। सर AB की वैल्यू क्या है? वो चार्ट में प्लॉट करके मालूम पड़ेगा ना, क्विकली कंपास डिवाइडर डाल के। 9.1
Anyway, it's okay. We can know by using the compass how much distance. सर खुद ही म्यूट हो गया। Sir, your mic is mute. Hello. Go ahead, please go ahead. What was the question? He was asking the value of अभी AB. बिल्कुल क्लियर नहीं है, या तो चैट आप व्हाट्सएप में मुझे क्वेश्चन लिख देना। इस सेशन के बाद आप मुझे अपना क्वेश्चन, आई विल आंसर ऑन द व्हाट्सएप, ठीक है? आई विल आंसर ऑन द व्हाट्सएप। नाउ आई विल मूव टू माय नेक्स्ट दिस थिंग, पोजीशन सर्कल। Okay, sir. आप व्हाट्सएप में क्वेश्चन लिख दीजिएगा बाद में। अच्छा, ये वाला जरा पढ़िए, प्लीज रीड दिस, ट्रांसफर ऑफ पोजीशन सर्कल। अपने आप जूम कीजिए अपनी स्क्रीन पे और इसको पढ़िए, इस क्वेश्चन को पढ़िए। कुछ लोगों को ये बहुत आसान लगेगा और कुछ लोग हैं और जो ज्यादा इंटेलिजेंट हैं उनको कई बार ज्यादा इंटेलिजेंट को बात समझ नहीं आती। तो इसका फंडा है कि सेंटर ऑफ द सर्कल इज द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस। सेंटर ऑफ द सर्कल इज द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस। So this is based on that funda. Okay. ठीक है, तो the ship was moving on a southerly course at some engine speed and current was given and time was also given in this question. Time is 2.5 hours and engine speed is 12 knots. So we start the ship from lighthouse, assuming that ship is on the lighthouse. ऐसा अज्यूम करने में कोई गलती नहीं है, सेंटर ऑफ द सर्कल से ही शिप चलाना होगा। जब भी आपको पोजीशन सर्कल ट्रांसफर करना होता है तो आपको सेंटर ऑफ सर्कल से ही शिप को स्टार्ट करना होता है। सो वी स्टार्ट द शिप फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, अप्लाई अ रन फॉर 2.5 hours which is 30 miles. 12 multiplied by 2.5 is 30. So we run the ship for 30 miles and then apply current for another 2.5 hours. So which will be 7.5 miles. So course steered and then course steered के सर पे हमने लगाया करंट। हमेशा करंट कोर्स steered के सर पे लगता है। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि करंट जो है कोर्स मेड गुड के हमेशा पूंछ पे लगता है और कोर्स steered के हमेशा सर पे लगता है। तो कोर्स steered के सर पे लगाया करंट 7.5 माइल, तो हमारा गोल्डन ट्रायंगल आ गया और डॉटेड लाइन इज द कोर्स मेड गुड। गोल्डन ट्रायंगल आ गया। जैसे ही गोल्डन ट्रायंगल आया, जो महत्वपूर्ण बिंदु आई है, जो कोर्स स्टीयर्ड करंट लगाने के बाद जो बिंदु है, उस बिंदु को, तो शिप वाज नॉट ऑन द लाइट हाउस ना, तो वी हैव टू नाउ ट्रांसफर, जो भी 5 माइल ऑफ है ना, लाइट हाउस वाज इनिशियली 5 माइल्स ऑफ, तो ये जो बिंदु आई है इसको, इससे 5 माइल का दोबारा से हमें सर्कल बनाना होगा और 10:30 पर हमें एक पोजीशन लाइन भी मिली हुई है। तो पोजीशन लाइन मीट्स द पोजीशन सर्कल एंड वी गेट अ फिक्स एट 10:30 और 10:30 की फिक्स से जो कोर्स मेड गुड हमारा ओरिजिनल था, जो डॉटेड लाइन थी, डॉटेड लाइन को बैक ट्रैक कर देना है, मतलब अ लाइन पैरेलल टू द डॉटेड लाइन को, जो फिक्स आया है 10:30 पर, उससे जब हम बैक ट्रैक करेंगे तो हमारा 8 o'clock फिक्स आ जाएगा। लेकिन यहाँ दोबारा से एम्बिग्युइटी आ गई, 8 बजे जहाज उधर भी हो सकता है उधर भी। तो आंसर सिर्फ नीचे वाला है। वो रीजन ये है कि जो कोर्स मेड, जो डीएमजी जो प्राप्त हुआ था, डॉटेड लाइन वाज डिस्टेंस मेड गुड। स्पीड में, व्हाट इज स्पीड मेड गुड फॉर 1 hour, for any other time is called distance made good.
सो इस केस में 2.5 आवर का टाइम था, तो टोटल डिस्टेंस मेड गुड भी हमें बिल्कुल सही, मैग्नीट्यूड उसका सही था, ना केवल उसकी डायरेक्शन सही है बल्कि उसका मैग्नीट्यूड भी सही है। तो जो भी हमें एक्चुअल वैल्यू ऑफ DMG प्राप्त हो गई थी, तो हम उसको मेजर करेंगे तो देखेंगे वो एक ही जगह आएगी। फिक्स से 10:30 फिक्स से तो पीछे की तरफ जो CNG आएगी 8 बजे DMG की वैल्यू लगाने पर, क्योंकि DMG की करेक्ट वैल्यू प्राप्त हो चुकी है, तो वो वैल्यू लगाने पर जो भी 8 बजे पोजीशन आएगी तो वो एम्बिग्यूटी रिजॉल्व हो जाएगी हमारी। So that particular is the 8 o'clock position and not the other one. Okay, so this was the transfer of position circle, and now I will like to move to the hello. Go ahead. Yeah, please go ahead. हाँ okay. No, you send me a message, write down your email ID and send me a WhatsApp message and I will reply. Today is the last day. Okay. हाँ, मेरी क्लास चल रही है, मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता, ठीक है, आप WhatsApp भेजिए। हाँ, ओके, सॉरी, एक सेकेंड। Hello gentlemen, how was that session? Very good. Nice, sir. Very good. Satisfactory? Fantastic, sir. ओके, अभी जितना टाइम है हम सर थोड़ी ये जो बात कर सकते डायग्राम आपने पहले बनाई थी ना, मतलब ट्रांसफर ऑफ पोजीशन सर्कल में, आज बहुत ज्यादा इसमें इशू आ रहा है हमारा कनेक्टिविटी में। आवाज आपकी सुनाई नहीं दे रही मुझे ठीक से। सर Sir, कैन वो यू हियर last मी? diagram देखो। सबके माइक ऑफ कर दो जरा, एक सेकेंड। Sir, which Mute book to हाँ, अब जिसको बोलना है एक बंदा बोल सकता। सचिन चौधरी बताइए क्या बात है? सर मेरा क्वेश्चन है, कौन सा बुक को रेफर करना है चार्ट वर्क के लिए सर? रिपीट सर, सॉरी सर अदर देन योर नोट कोई ऐसा बुक प्रेफर करना है जो आप बताएं चार्ट वर्क के लिए? चार्ट वर्क के लिए कुछ करने को कह रहे हो आप, व्हाट्सएप पे लिख दो यार प्लीज, मुझे बिल्कुल आप ग्रुप बना लाउड रहे हो स्पीकर की वजह से हो रहा है सर, आप लाउड स्पीकर यूज कर रहे हैं इसलिए हो रहा है।